नमस्कार करती हूँ सब रसिक जनों को जो मेरे साथ मेरी फेसबुक लाइव में जुड़ते रहे हैं। आज कुछ चमत्कार हुआ तो शुरू की 2 मिनट 3 मिनट के बाद ये मायावी नेटवर्क अदृश्य हो गया। फिर एक झलक आई और फिर अदृश्य हो गया। मायावी इसलिए कह रही हूँ that it's a virtual world, like virtual expression, virtual affection, virtual living, ये सारी बातें मायावी हम कहते हैं। खैर जो है सो है। मेरा आज का विषय है लॉकडाउन पॉजिटिव्स और हिंदी में मैंने रखा है एकांतवास के अनेक लाभ। एकांतवास के अनेक लाभ। सबसे पहले शब्दों का चयन। See, the words have different connotations, different nuances. ध्वनि अलग होती है शब्दों की। Terminology. Internationally accepted and used word now is lockdown. Lock up तो हमने सुना है. We have heard of lockups in the police stations for those culprits who are yet to be presented in the court. Before that, they are in the police lockup. Locking, band, tala chabi. It can have an expression of zabardasti. हिंदी में मैंने उसको जिस तरीके से समझा, एकांतवास, एक अंतवास, एकांत. It ends with me and vasa is to be with. जैसे ये निवास है, श्री कामाख्या निवास, जहाँ श्री कामाख्या देवी का वास है. सो एकांत, एक के अंत, यानी एक में अंत होता है वो वास. यू आर विथ योर सेल्फ. सॉलिट्यूड. मैंने पहले तो आपको लॉकडाउन पॉजिटिव्स के बारे में बताना है. यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट व्हाट ऑल वन कैन डू. नाउ वी आर ऑल वेटरन्स आफ्टर 21 days of lockdown. Apart from those who could not control their urge to somehow go out, hiding, trying not to be seen. But majority of us, we followed the rules and the discipline, the system laid down for our own good and for the good of everyone. सर्व कल्याण के लिए नियम बनाए गए. घर में रहिए. घर में रह गए. हम सब अब देख रहे हैं, तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं. कुछ मजाकिया, कुछ गंभीर. The videos are becoming viral. And it's such fun to see men, maybe the company executives or God knows, big shots, small shots, men, the sons, the husbands, father, whoever, trying to बेलो the रोटी. तो जो उसका गुल्ला होता है ना, फर्स्ट दी आटा, उसको उस पर एक बेलन यूं डालते तो गुल्ला उछलता है. And all the atta is on their face. Very, very funny videos have been circulating, which also somewhere show the minimal participation of the man of the house
in the daily chores. कभी नहीं बोला गया housewife as vocation or profession, है ना? In all the forms that you have to fill up for your passport, for your job application, wherever. So they have all these little, what you are, what do you do, and then there is a little box and other. And other. I would insist now through my session, housewife, yeah, house worker, wife and wife. I'm not a wife, but I do my housework. So house worker or home maker, there should be a separate box. It can be a man, it can be a woman, not a problem. So I was saying that during the lockdown, so many things emerged which maybe were not in our attention, जिसका हमें ख्याल ही नहीं था. ऐसी ऐसी बातें उभर के आ गई. And कोई नया कुछ सीख रहा है. Somebody is trying to learn a new skill. Somebody has taken to running within the house to complete the steps, the time. Somebody is learning yoga. Somebody has started writing diary. Somebody is creating new little poems and limericks. तरह तरह की बातें आ रही हैं, which is wonderful. So lockdown positives, that people have learned to be positive. Oh my God, when will this open? I'm so bored out of my mind. Look at this. ये धुल गया. Even if you carry that little worm in your brain, that worm has no space. People have understood. That's a great thing. So number one positive is people have learned, are still learning to be positive. The positive attitude helps you not only to spend your day usefully, but also to radiate, generate that energy which reaches to others in your environment. Second is creative. New kind of creativity which you didn't know existed has emerged. Third, you have learned to be in an environment which is not maybe of your choice. Mall जाना है, film देखनी है, restaurant जाना है, घूमने जाना है, खरीदने जाना है, पार्टी में जाना है, जाना है, जाना है, जाना है. I want to go, I want to go, I want to go. Gone. We learn to be disciplined with ourselves, within our surroundings, and respect each other and respect that system which tells you how to think, how to behave, and why to remain where you are. It's a big positive in life, where you're not hankering after this, that. No, you learn to be a little quiet. ये positives मेरे ख्याल में बहुत valuable हैं. They will help you and help us, all of us, to go forward in life. अब मैं आती हूँ एकांतवास पे, the Hindi word which I personally have selected. वैसे ही मुझे एकांतवास की आदत है वर्षों से. एकांतवास is solitude, not loneliness. इसका गलत अर्थ नहीं करना है. अकेलापन नहीं. मैं मेरे साथ, मैं मेरे इसके साथ, परिसर के साथ, मैं मेरे पर्यावरण के साथ,
मैं मेरे विचारों के साथ मैं ऊर्जा को संग्रहित कर रही हूं। आई बिकम अ रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। तो एकांतवास के अनेक लाभ, उसमें पहले तो मैं एकांतवास में उपवास जोड़ना चाहती हूँ। उपवास, वी ज़्यादातर लोग उपवास करते हैं नवरात्र में या महाशिवरात्रि पे या कृष्ण जन्माष्टमी पे, रामनवमी पे। There are occasions when people observe fast. What kind of fast? उसका भी मैं आपको उदाहरण दे दूं। उपवास एक्चुअली जैसे उपनिषद शब्द सुना है ना, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक एटसेट्रा, पुराण। उपनिषद जो है उसमें भी जो ये है प्रीफिक्स है, तो उपनिषद एक्चुअली मीन्स टू बी क्लोज टू, टू बी क्लोज टू। तो उपनिषद में शिष्य गुरु के पास है और शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर देता है। ऐसे ये उपनिषद हैं सारे 18। उपवास, वास मैंने पहले ही कहा, साथ में रहना, द प्लेस ऑफ बीइंग। उपवास में अपने साथ हूं, आई एम विथ माई सेल्फ। तो उसीलिए उपवास के दिन बहुत जगह कहा गया है मौन रहिए, पट्टी मुंह पे। वो तो होता नहीं है। ज्यादातर लोग राम 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 राम, अरे क्या कर रहा है, हाँ हाँ, ये तो उपवास नहीं है। मात्र कुछ कुछ खाना छोड़ देना वो उपवास नहीं है। मैं एक वीडियो ढूंढ रही थी, वो वीडियो मुझे 2-3 बार, आई थिंक 2-3 वर्षों में आया। बहुत यानी सटीक उदाहरण है। एक घर का मालिक होगा, पति होगा, अच्छा खासा तगड़ा, तो वीडियो में कह रहा है अपनी पत्नी को, पत्नी नहीं दिखाई है, कि चलो अपने हेल्थ के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, चलो आज उपवास कर लेते हैं। एज इफ पत्नी को या किसी को ओब्लाइज कर रहा है, और है तगड़ा। फिर आगे कहता है तो ऐसा करो कि सुबह के नाश्ते में वो लिस्ट मेन्यू देता है, तो उसमें दाल नहीं होगी, ये नहीं होगा अपना, गेहूं नहीं होगा, जो भी थोड़ी बहुत, उसके अलावा सब कुछ। तो 3-4 चीजें वो नाश्ते सुबह के लिए बता देता है। फिर कहता है कि लंच के लिए ऐसा करो कि छम 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 पूरियां तल दो घी में, देसी घी में अपने, वो एक स्पेशल आटा आता है ना उसकी, और आलू टमाटर की रस वाली बढ़िया हींग डाल के ये खड़ा मसाला वो सब्जी बना लो, और थोड़ा बहुत ये सलाद वगैरह काट लेना, और कुछ फल वगैरह रख लेना। नहीं, ऐसा करो कि फ्रूट सलाद बनाओ और कुछ कस्टर्ड बना लो, तो फ्रूट सलाद कस्टर्ड हो जाएगा। और दोपहर ये शाम के चाय के साथ तो आलू की टिकियां उतार देना, उसमें अच्छी हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक वगैरह डाल के, साथ में इमली की चटनी, खट्टी मीठी, और हरे धनिए की चटनी और पुदीने की चटनी, ये सब हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और फिर ऐसा करो कि रात का खाना तो हल्का ही रखना। रात के खाने पर भी मेन्यू बताता है 4-5 चीजें, तो उसमें खीर भी है, उसमें बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची, ये सब होना चाहिए।
तो ये भैया चलो उपवास कर लेते हैं, सेहत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये वीडियो एकदम बढ़िया उदाहरण है कि उपवास का मजाक किस तरीके से उड़ रहा है। जो उपवास करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उपवास करते हैं नवरात्र में, सबने सुना होगा, मात्र पानी पी के रहते हैं। और जब अमेरिका गए थे 2-3 वर्षों पहले, तो नवरात्र वहाँ पड़ी थी, तो वहाँ एक बार ऐसे कुछ मात्र नींबू पानी लिया था, ऐसा सुना। अब ये तो उपवास की बात हुई। एकांतवास में, उपवास में क्यों कह रही हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे आज सुबह, मुझे अच्छा लगा, याद आया, तो ये मैं लिख रही थी कि मैंने पूरा वो लिखा है। एकांतवास का अर्थ ये भी होता है कंट्रोल, अपने आप को नियम में बांधना, किसी और के कहे नियम में नहीं, अपने आप तय किए हुए नियम में बांधना। उस नियम में मैं क्या क्या जोड़ रही हूँ? आंखें खोलकर देखना। अब सब कह रहे हैं आकाश नीला दिख रहा है, अब सब कह रहे हैं पत्ते हरे दिख रहे हैं, अब कहते हैं चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, वी कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग। अब कह रहे हैं यमुना का पानी स्वच्छ निर्मल हो गया है, मथुरा में भी गंगा का पानी स्वच्छ हो गया है। और जलंधर शहर से हिमालय की बर्फ आच्छादित टेकरियां, पहाड़ियां, शिखर दिख रहे हैं, उसके तो फोटो वायरल हो गए। बताइए हम कहाँ थे, और मात्र 21 दिन में प्रकृति ने अपने आप को कैसे उभारा। तो ये एक नियम हमारा होना चाहिए सभी का कि ऑड नंबर, इवन नंबर, ये करो ये ना करो, इतने सारे जो रूल्स बनाने, कायदे कानून जिसको नियमित रूप से तोड़ा जाए, हम अपने लिए क्यों ना नियम बनाएं? हर रोज के लिए, अपने काम के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, पर्यावरण के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आई थिंक अनेक लाभों में एक बड़ा लाभ कि हम इसको लिखें, समझें, सोचें। और ये जब लॉकडाउन खत्म होगा, एकांतवास खत्म होगा, फिर से नियमित जीवन शुरू हो जाएगा, भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, पौ पौ पी पी, हटो हटो शुरू हो जाएगा। उसके बाद कैसे ये चालू रहे, उसका भी मनन चिंतन हमें करना चाहिए। नॉट वेट टिल गवर्नमेंट अगेन puts a lockdown or goes to give us some new laws. Why cannot we ourselves and again be an example to the world? To the world. आज भारत की साख दुनिया में ऊपर उठती जा रही है। 130 करोड़ के देश में यदि कुछ थोड़े चंद 2000, 10,000 कुछ हैं, तो वो इतनी कम मात्रा है और ना बढ़े उसकी सारी पैरवी हो रही है। बताइए, दिस शुड नॉट गो, द कर्व शुड फ्लैटन आउट। वी आर स्टिल वे बिलो एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। वी शुड बी प्राउड ऑफ द एफर्ट्स बीइंग मेड एंड वी शुड जॉइन द एफर्ट्स बाय। एकांतवास के अनेक लाभ हम गिने। तो मैंने ये लिखा था आज कि खाने पीने पे हद से ज्यादा ध्यान ना दें। लॉकडाउन जब खत्म होगा तो ये ना हो कि कमर का कमरा बन जाए और दरवाजे से बाहर ना निकल पाए। ये नहीं होना चाहिए कि घर बैठे हैं तो चलो। और प्रतिदिन हल्का व्यायाम तो सब बोल ही रहे हैं, योग, दौड़ना, उठ बैठ करना, जहां बैठे वहां सीधे उठने की कोशिश, बैठने की कोशिश,
इन एवरी एक्टिविटी, एक्ट, हर एक क्रिया में आप यदि शरीर को पूरी तरीके से लगाते हैं तो वो भी तो व्यायाम है। गर्दन को घुमाते हैं, आँखों को घुमाते हैं, उंगलियों को आप घुमाते रहते हैं, कंधे हिलाते रहते हैं, तो वही तो व्यायाम है, वही तो योग है। तो योग इज चित्तवृत्ति निरोध, पतंजलि ने कहा। हमारी चित्तवृत्ति माकड़ की, बंदर की तरह उछलती रहती है, कूदती रहती है, ये उसका निरोध करना, उसको नियमित करना, उसको कंट्रोल करना, यही तो योग है ना। तो ये योग, अंतर योग और बहिर्योग को हम मिला सकते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे उम्र वाले हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बड़े एग्जीक्यूटिव हो, बड़े घरों में रहते हों, चाहे झुग्गी में रहते हों, चाहे कहीं रहते हों, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसमें से किस तरीके से और ऊर्जा बढ़ा के, और विजडम लेके, और विचारशील बन के हम बाहर आए। विचारशील। तो मैंने आपके लिए कुछ लिख दिया है, मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ। क्या लिखा मैंने? शांति एक शब्द बहुत बड़ा है, पीस, PEACE। कभी कभी उसकी PIECE भी हो जाता है। पीस के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन पीस टॉक, पीस पैक्ट, पीसफुलनेस, पीस इन द माइंड, ये सारी पीस की बातें चलती हैं, शांति की बातें चलती हैं। वो शांति दूत है, शांति का करार, वगैरह वगैरह वगैरह। शांति, लेकिन मंत्र जो है, मैंने अपने साथ यहाँ पे जो है उनसे पूछा, शांति मंत्र कितने लोगों को आता है? छोटा सा है, सीख लीजिए क्या कहता है वो। और जिनको सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म का बोलने का शौक है, उनके लिए विशेष रूप से, उसमें कोई धर्म नहीं है। धर्म मात्र मानव धर्म है। धर्म है मात्र प्रकृति को संभालने का धर्म है। धर्म है मात्र सभी जीवों को, प्रकृति को, पृथ्वी को आदर देने का धर्म है। तो उसमें पृथ्वी शांति से शुरू होता है। द्यौ शांति, आपस शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतय शांति, औषधय शांति। यानी पृथ्वी शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, आकाश शांत हो, पानी शांत हो, हवा शांत हो, वनस्पति औषध यहाँ जहाँ हैं, सारे पेड़ पौधे फूल फल शांत हों, और सब में शांति रेव शांति ही, और शांति को भी शांति मिले। इतना सुंदर। फिर और भी है गौ शांति, यानी गौ इज नॉट ओनली गाय, एवरी एनिमल, एवरी चिड़िया। गो का मतलब है तेज। एक्चुअली जो मतलब है गो शब्द का, वो है तेज, प्रकाश। गो इज नॉट ओनली काउ, इट मीन्स लाइट, इट मीन्स इफल्जेंस, जो अंतरिक्ष में दिखती है, दैट which is everywhere in space, not only when you switch on the light. That is go. तो वैष्णवों में कहते हैं, when somebody dies in the Vaishnava, people who believe in Vishnu, गोलोकवासी हो गए. He or she has attained the sphere of light, eternal light. तो ऐसे जो सारी चीज़ें हैं, उसको हम थोड़ा लें, उसको समझें, उसको रिसाइट करें, उसको मुंह पाठ करें। रेसिटेशन में कितनी शक्ति है। तो मैं बताती रहती हूँ कि मुझे जितना प्राप्त हुआ है, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, आजीवन मैं शिष्य हूँ, आजीवन। इवन टुडे आई इंक्वायर, आई रीड, आई आस्क माई फ्रेंड्स हु आर स्कॉलर्स। मुझे कोई उसमें संकोच नहीं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। आई नेवर शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माई इग्नोरेंस एंड फॉर कन्वेइंग माई इंक्वायरी। प्लीज टेल मी,
तो ये अपने ईगो को दबाने का, ईगो को पानी में बहाने का भी एक बड़ा साधन है, जो एकांतवास में आप लीजिए, शिष्य बनिए फिर से। और जो ये शांति पाठ, तो मैंने एक शांति पाठ लिखा है, शांति मंत्र, तो मैंने लिखा है लॉकडाउन एकांतवास का शांति मंत्र। अब मैं इसका पाठ करती हूँ। ओम। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में डाला है, इसमें नहीं करना है, ये ओम नहीं है, उबासील है ना, ओम नहीं है। तो थोड़ा हंसना चाहिए, हर चीज़ मैं सीरियसली लेने को नहीं कह रही हूँ। आई लव लाफ्टर, आई लव विट, आई लव जोक्स। तो हास्य भी व्यायाम है मुंह के लिए। करने से रेखाएं पड़ती, हंसने से रेखाएं अच्छी पड़ती हैं, मन प्रफुल्लित रहता है। तो मैंने कहा ओम अच्छे से बोलिए। अब मैंने कहा नंबर 1, कुंभकर्णी नेत्रों को शांति। कुंभकर्ण कौन था? रावण का भाई, जो सोता रहता था, उसको जगाने के लिए बाजे बजाने पड़ते थे, कान में पुपू पुपू करना पड़ता था। तो कई लोग अभी कुंभकर्ण की निद्रा में पड़ जाते हैं, आंखें बंद रहती हैं। तो मैंने लिखा है नंबर 1, कुंभकर्णी नेत्रों को शांति। खोलिए आंख। ऊंची वॉल्यूम से थके कानों को शांति। प्लग डाल के सुनते रहना, चिल्लाना, वॉल्यूम ऊपर करके सुनना, कान थक जाते हैं, उसको भी शांति दीजिए। सांस चलता रहे इसलिए नासिका, नाक को शांति जरूरी है। सांस रुक गया तो गए। फिर मैंने लिखा है बेसमय कुछ मुंह में डालने के लिए लपलपाती जीभ को शांति। अनटाइमली क्या करूं, चलो कुछ खा लेते हैं, चुरमुर बिस्किट जो भी है खा लेते हैं, इसको शांति, जिससे कि आपके उदर पेट को शांति। उसके बाद लिखा है मुंह में नहीं समाती बातुनी जीभ को शांति। एक ये जीभ है जिसके 2 काम हैं। आंख का एक ही काम है देखना, कान का एक ही काम है सुनना, नाक का एक ही काम है सांस लेना निकालना। ये जीभ है ना, भयंकर जालिम चीज है। इट हैज 2 functions. 1 is to talk, another tasty, eat. You have to control both. So 1 is no untimely khana pina, 2nd is controlled speech. As far as possible, quiet. तो मुंह में नहीं समाती बातुनी जीभ को शांति। दूसरे तीसरे क्या कर रहे हैं? वह जानने की इंतजारी को शांति। Being curious about what others are doing, what I am doing, उसको भी शांति। That unnecessary inquiry, शांति। Then I've written टीवी मोबाइल देख देख कर अकड़ी हुई ग्रीवा गले को शांति। ऑल द टाइम कंप्यूटर टीवी ये अकड़ गई, उसको शांति दीजिए। देन पेन पेन लैपटॉप मोटर 2 व्हीलर को चलाने वाले हाथ, executives, people who are driving cars, who are driving 2 wheelers all the time, they are writing all the time, they are typing, whatever. Executives, people who work. Pen, laptop,
मोटर, टू व्हीलर इत्यादि को चलाने वाले हाथ जो अब बेलन, चकला, चमचा पकड़े हुए हैं, ऐसी भुजाओं को शांति। ये विशेष करके आप जानते हो ना, पुरुषों के लिए है स्त्रियों के लिए भी है। 24 घंटे वो नहीं करेंगी, बेटा करेगा, पिता करेगा, भाई करेगा, पति करेगा। फिर कमर से कमरा बनती जाती कटी कमर को शांति। फिर से शेप मिलाइए। फिर पैर जो घूमने फिरने दौड़ने के योग्य थे, अब नहीं रहे, उनको भी शांति। मतलबी छोरों से बची हुई पीठ को भी शांति। मतलबी छोरे, there is so much backbiting, so much unnecessary criticism that we also do indulge in. All that we say पीठ में छुरा मारना, यानी unnecessarily hurt people. शांति दीजिए उसको. Look at yourself, not at others. Point here, not there. उसके बाद मैंने लिखा है, इधर उधर दौड़ते बेकाबू विचारों को शांति। इधर उधर दौड़ते अनकंट्रोल्ड थॉट्स, उनको भी शांति। एंड उस स्नेह भरी हंसी, that affectionate smile, that little laugh, indulgent, let's say, drishti, that indulgent, affectionate glance, that affectionate warmth in your voice, what you are saying, उनको शांति पूर्वक आमंत्रण। आइए आइए मेरे में बसिए। दैट स्नेह, दैट अफेक्शन, वो ऊष्मा, दैट वार्मथ, दैट इंडल्जेंस, आइए आप मेरे बनिए। सो दिस इज एन इन्विटेशन फॉर ऑल द पॉजिटिव गुण क्वालिटीज टू बी विथ यू, टू बी विद इन यू। और मैं कह रही हूं, आओ अब फिर न जाने के लिए आओ। Come, never to leave me. That warmth, that affection, that indulgence, that care, that concern, come, be in me, never to leave me. अब उसमें मैंने एक गजल रच दी है, जो आप देख लेंगे, आपको पता चलेगा what it is. मैंने लिखा, ख्वाहिश ही सही, ख्वाहिश ही सही, दिल को रिझाने के लिए आ, ख्वाहिश ही सही, आ फिर भी मुझे छोड़ न जाने के लिए आ फिर भी मुझे छोड़ के न जाने के लिए आ, ख्वाहिश ही सही, दिल को रिझाने के लिए आ। ख्वाहिश किस बात की? फिर मैं आई रिपीट, दोबारा बताती हूँ। इन सब अच्छी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, इन सब की ख्वाहिश, प्यार की ख्वाहिश, ऊष्मा की ख्वाहिश, मैत्री की ख्वाहिश, सर्वे भी संतु सुखिनः, ये ख्वाहिश। सबसे पहले मैं, आई कम आउट ऑफ दिस अ बेटर पर्सन, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, अ मोर पॉजिटिव पर्सन, ये ख्वाहिश कि जब मैं एकांतवास से बाहर आऊं तो मेरे में कितने अच्छे गुण और खिले हुए मुझे दिखें, लोगों को दिखें, ये मेरी ख्वाहिश। तो आज इतना ही। अंत में मैं कहूँगी,
एक रूमी जलालुद्दीन रूमी, बड़ा सूफी हो गया। तो लिसन टू साइलेंस, इट हैज़ मच टू से। साइलेंस का मतलब शांति नहीं है, लेकिन शांत वातावरण, कहीं कोई कोलाहल नहीं, कहीं कोई कर्कशता नहीं। उसको सुनो, वो बहुत कुछ कहता है, वो बहुत कुछ आपको बता रहा है। साइलेंस को सुनो, लिसन टू साइलेंस, इट हैज़ मच टू से। इसकी भी आदत हमें डालनी है। एकांतवास में ये आदत पड़ जाएगी तो सबके साथ होते हुए भी, बाद में कोलाहल में होते हुए भी, आप उस साइलेंस को अनुभव करेंगे, जिससे फिर आप उभरेंगे पॉजिटिव बन के। तो ओम शांति शांति तो मैं बोलूँगी ही। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ओम शांति 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 ही। परसों शुक्रवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। भगवती करे इंटरनेट और सारा नेटवर्क चलता रहे, फिर कुछ नई बातों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।